اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے دیں، کریری ڈور اننت ناگ میں انکاؤنٹر جاری۔ بڑی خبر، کریری ڈور اننت ناگ میں انکاؤنٹر جاری۔ سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ جاری ہے انکاؤنٹر۔ 2 سے 3 ملیٹنٹوں کی موجودگی کا خدشہ، علاقے میں جاری ہے سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ بڑی خبر اس وقت کی کریری ڈور اننت ناگ سے آ رہی ہے، انکاؤنٹر جاری ہے، وہاں پر سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ انکاؤنٹر جاری ہے۔ 2 سے 3 ملیٹنٹوں کی موجودگی کا خدشہ ہے، علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ بڑی خبر، کریری ڈورو اننت ناگ میں انکاؤنٹر اس وقت چل رہا ہے اور سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ انکاؤنٹر جاری ہے۔ 2 سے 3 ملیٹنٹس کی موجودگی کا خدشہ ہے، علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ بی جے پی عام آدمی کے مدعوں اور ملک کی حالت سے دھیان ہٹانے کے لیے اب ملک کے مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے۔ انہوں نے لال قلعہ اور تاج محل جیسی تاریخی عمارتوں کو مندروں میں تبدیل کرنے کا بی جے پی کو چیلنج دیا۔ اننت ناگ کے بجبہاڑا علاقے کے دورے کے دوران مفتی نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ہندو مسلم اتحاد کو ختم کرنے پر تلی ہے۔ اس کی بات ہے کہ جہاں بی جے پی سرکار لوگوں کو روزگار نہیں دے پا رہی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ہمارے ملک کے جو اثاثے ہیں وہ بیچے جا رہے ہیں، جو ہمارا ملک بنگلہ دیش، پاکستان اور نیپال سے بھی پیچھے ہے اس وقت غربت میں، تو ایسے میں لوگوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے ان کو مسلمانوں کے پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، اس میں تاج محل کی بات ہو رہی ہے، دوسری تیسری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ اس ملک کی دولت لوٹ کے باہر چلے گئے، چاہے وہ مالیہ ہے، چاہے مودی ہے، دوسرے کوئی مودی ہے، تو بجائے وہ دولت وہاں سے واپس لے آتے، یہ یہاں جو ہمارے مغلوں کے وقت میں اثاثے بنے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، قلعے بنے ہوئے ہیں، تاج محل بنا ہوئے ہیں، ان کو بگاڑنا چاہتے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہندو مسلم کو لڑانا چاہتے ہیں، آپس میں جھگڑا کرانا چاہتے ہیں۔ اگر ان میں دم ہے تو تاج محل جیسے جو اس قسم کے ہمارے پرانے لال قلعے جیسے، تو ان کو مندر بنا کے دکھا دے، پھر دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس ملک کے اندر آئیں گے اس ملک کو دیکھنے کے لیے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے ایل جی منوج سنہا کو آثار قدیمہ کی سائٹ پر پوجا کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ اپنے پلوامہ دورے کے دوران میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے محبوبہ نے کہا کہ جموں کشمیر صدیوں سے مذہبی رواداری کے لیے مشہور ہے۔ ایل جی کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں قانونی سرپرست ہی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ضلع اننت ناگ میں حال ہی میں آثار قدیمہ کے ایک مندر میں ہوئی پوجا میں ایل جی نے شرکت کر کے پوجا کی تھی اور اس کا محکمہ آثار قدیمہ نے نوٹس لیا ہے۔ اسٹیٹ کا ہیڈ ہو، وہ اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتا ہے، وہ کوئی مہنت نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی پجاری نہیں ہوتا ہے کہ جہاں پہنچ جائے تو آپ پوجا کرنے بیٹھ جاؤ۔ پوجا کرنے کا کام پجاریوں کا ہے، مسجد میں اذان دینے کا کام جو اذان دینے والا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ان کو جو ہے یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ سیکولرزم کا یہاں جو کلچر ہے ہمارا، اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہزاروں تعداد میں ہمارے جو لوگ ہیں، کشمیر کے لوگ، جموں سے لوگ جو جیلوں میں بند ہیں، اتنے زیادہ تعداد ہے کہ آپ جموں کشمیر کے جیل بھر چکے ہیں، باہر لے کے جاتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے الزام میں۔ تو یہاں جب گورنر صاحب خود ہی قانون توڑتے ہیں، جو رولز ہیں ریگولیشن سے ان کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ایک ایسی جگہ پہ پوجا کرتے ہیں جو آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے پاس جو ہماری سائٹ ہے جہاں پوجا کرنا جو منع ہے، تو جب وہ خود ہی قانون توڑیں گے تو باقی لوگوں کو کیا قانون سکھاتے؟ قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کی ٹیم نے پلوامہ کے چوان کلان علاقے میں 2 ماہ قبل ہوئے انکاؤنٹر کے سلسلے میں جاری تحقیقات کے حوالے سے چھاپا مارا۔ این آئی اے نے چوان کلان میں موجود دارالعلوم پر چھاپا مارا اور تلاشی کارروائی انجام دی۔ انکاؤنٹر کے دوران ملیٹنٹوں نے دارالعلوم میں پناہ لی تھی۔ انکاؤنٹر میں 2 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے تھے اور ایک کو زندہ پکڑ لیا گیا تھا۔ اس دارالعلوم کے سربراہ پہلے ہی پولیس حراست میں ہیں۔
श्रीनगर की एक सेशन अदालत ने आज कश्मीरी पंडित सतीश टिक्कू के कत्ल में साबिक मिलिटेंट फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे के खिलाफ एक दरख्वास्त पर समाअत उस वक्त मुलतवी कर दी जब दरख्वास्त गुजार के वकील ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की। इस केस की समाअत आज फर्स्ट एडिशनल सेशन जज श्रीनगर की अदालत में होनी थी। ताहम टिक्कू के खानदान की तरफ से पेश होने वाले वकील उत्सव बेंच ने सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की। ये इल्तवा बेंच के पहले एडिशनल सेशन जज श्रीनगर को लिखे गए खत के बाद आया, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम न किए जाने के बाद वो श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस मामले की अगली समाअत 23 मई को होगी। कुपवाड़ा में कायम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 2 रोज से ऑपरेशन थिएटर बंद है। इसकी वजह से दर्द-ए-ज़ाह में मुब्तला खवातीन को जबरदस्त मुश्किलात का सामना है। मरीजों को हंदवाड़ा या बारामूला रेफर किया जा रहा है। यह अमल दर्द-ए-ज़ाह में मुब्तला खातून के लिए सीधे मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। अगरचे मेगा हेल्थ मेला मुनक्किद करना खुश आइंद कदम है, मगर इस दौरान महकमे को इमरजेंसी मरीजों के लिए भी जरूरी इंतजाम करने चाहिए। महकमे की इस गफलत शारी से कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है। किसी मुतबादिल इंतजाम के बगैर 2 रोज तक ऑपरेशन थिएटर बंद रखना दर्द-ए-ज़ाह में मुब्तला खवातीन के लिए कितना तकलीफ दह है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। थिएटर बंद करना पड़ा ताकि हम इसको स्टरलाइज पूरी तरह कर सकें, जिसको फ्यूमिगेशन करते हैं। एक चीज़ है कि वहाँ हमारा एक ही एनेस्थेटिस्ट है, डॉक्टर JM मीर साहब, तो वो दिन में कवर करते हैं, नाइट का अभी प्रोग्राम वहाँ नहीं है। तो डायरेक्टर साहब को भी ये अच्छी तरह पता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी एनेस्थेटिस्ट आए। एक और एनेस्थेटिस्ट कल ही उन्होंने भेजा है, उसने ज्वाइन भी किया यहाँ आज। तो हमारे SDH में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जो कैंप के लिए हैं वो कुछ और एनेस्थेटिस्ट भी आ रहे हैं ताकि ये कैंप अच्छी तरह हो जाएगा। 4 थिएटर्स को पूरी तरह से तैयार किया है। उसमें से एक थिएटर हमने इट इज़ डेडिकेटेड फॉर आवर एमरजेंसी नेचर सर्जरीज। उसमें जो गायनी और ओबस की सर्जरीज है, जैसे LSCS है, तो वो हम यही करेंगे। दैट इट विल नॉट गेट इफेक्टेड। तो उसमें पेशेंट्स को हम दिक्कतें पैदा नहीं करेंगे। 3 थिएटर्स हमने डेडिकेट किए हैं फॉर दिस हेल्थ मेगा हेल्थ कैंप, और एक थिएटर हमने इमरजेंसी को कैटर करने के लिए रखा है। श्रीनगर पुलिस ने मेड एजेंसी के जरिए धोखे की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 खातून मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल लाल बाजार श्रीनगर के मुजम्मिल हयात नामी शख्स ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए करिश्मा मेड ब्यूरो के जरिए एक नौकरानी की खिदमत हासिल की और इस ब्यूरो ने अर्चना चौहान नामी मुलाजिमा को एजेंट रजनी झा के साथ उनके घर भेजा था। एजेंट को 1 साल की एडवांस की रकम 74,000 रुपए दी गई थी और फिर दोनों रकम के साथ फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों खवातीन को काजीगुंड इलाके से चंद घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एहसन परदेसी ने कहा कि कश्मीर में शराब की नई रिटेल दुकानों का खोलना सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी है। परदेसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के स्कूलों के नजदीक शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकती। उन्होंने कहा कि अथवाजन में स्कूल के नजदीक शराब की दुकान खोल दी गई है। हमने हाल ही में जो लिकर पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है, जिसके जरिए वादी कश्मीर में बहुत सारी जगहों पे रिटेल लाइसेंस जो है वो इशू की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी मजम्मत करती है और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करती है कि फिलफोर जो है ये लाइसेंस जो है ये रद्द की जाए। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है कि किसी स्कूल के पास, किसी हॉस्पिटल के पास और बिलखुसूस हाईवे के पास एक लिकर शॉप जो है उसकी परमिशन नहीं दी जाती है। पत्थर चौक में जहां पे इन्होंने ये लिकर शॉप का लाइसेंस दिया है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक हमारा एक राउंड स्कूल DPS स्कूल है, जो एक को एजुकेशन स्कूल जो है, वहाँ हमारे बच्चे जाते हैं, वहाँ हमारी बच्चियाँ जाती हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी मजम्मत करती है और उम्मीद करती है कि जो सरकार है जो है कि वो इस बात पर गौर करेगी और जो ये अनवारंटेड जो ये रिटेल लिकर शॉप्स का जो ये उन्होंने इस सिलसिला यहाँ पे शुरू किया है। ये त्राल के मुतादिद इलाकों चुवा अलर, छांगतार और लरगाम में
कल शाम शदीद ज़ालाबारी हुई है, इसकी वजह से मेवा बागात को नुकसान पहुंचा। आज महकमे हार्टिकल्चर की एक टीम ने HDO गौहर अहमद की निगरानी में मुतासर इलाकों का दौरा करके नुकसान का जायजा लिया। काश्तकारों ने सरकार से उन्हें मदद फराहम करने की मांग की है। गुजार अम बगैर गुजार कहें तो दीतन हार्टिकल्चर वो डिपार्टमेंट दीता कह मत गवर्नमेंट अपील कर असेसमेंट किया लगभग 5-10% इसका ये नुकसान है, तो फिर भी हमने उसको ये एडवाइजरी जारी की कि इस वक्त क्या करना है, इस फार्मर को क्या करना है कि ये नुकसान फिर ठीक हो जाएगा। मैनकोजिब 300 ग्राम पर 100 लीटर वाटर, उसके साथ मिलाना है यूरिया 200 ग्राम पर 100 लीटर वाटर, तो इसी का स्प्रे करना है, तो इसका ये हेल अप हो जाएगा और लीफ का भी और इसका फ्रूट का भी। शदीद ज़ालाबारी से त्राल के नहर और खासीपुरा में सरसों की फसल और धान की पनेरी को काफी नुकसान पहुंचा। किसानों ने बताया कि वो अभी सरसों की फसल काटने में लगे थे। शदीद ज़ालाबारी से फसल को शदीद नुकसान पहुंच गया है। उन्होंने महकमे ज़राअत के अफसरान से नुकसान का तखमीना लगाने और उन्हें मुआवजा फराहम करने की मांग की है। जबरदस्त नुकसान वोत तिलवोलस तजवानन ूंटन तो बिल्कुल नुकसान सपदो सही डोंट पे लगभग किस घंटस तो हुकामस कर अपील कि लिहाजा मेहरबानी कर तो कह टीम या दियान नजर तो यह वुशा वात गरीबन गुरबतन कह फायदे 5 बजे पे लोगन डोंट खतरनाक तो डोंट खतरनाक गम कोर जबरदस्त नुकसान ये नहर खासपुर बस तो इतला कर सोजू कह टीम तो यह दिया ये नजर वजर ये तुलगोगलस विलगोगलस ये थजवानन वजवानन जबरदस्त नुकसान नहर। ईद की शाम भुंज में दरियाए पुलिस में डूब जाने वाले 12 साल दामिन शेख की लाश आज हिंदुस्तानी हुकाम के हवाले की गई। चकंदाबाग इलाके में पाकिस्तानी फौज और सिविल इंतजामिया ने दामिन की लाश को हिंदुस्तानी हुकाम के हवाले किया। उसके बाद तमाम जरूरी लवाजमात को पूरा करके लाश को आखिरी रस्मात के लिए लवाहिकीन की सुपुर्द किया गया। महलूक के रिश्तेदारों ने दोनों हुकूमतों और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह के कल शाम को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में कुछ लोगों ने दामिन की लाश देखी थी। बाद में पुलिस और इंतजामिया ने लाश को अपनी तहवील में लिया और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। तस्वीर और दीगर तफसीलात की बिना पर दामिन के रिश्तेदारों ने पुंछ में जिला इंतजामिया से लाश वापस लाने के लिए राब्ता किया था। दामिन की लाश उसके गांव पहुंचते ही वहां सफ़े मातम बिछ गया। इसकी तदफीन के वक्त काफ़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। नहाते हुए बह गया था, तो उसी की डेड बॉडी जो है वो आज मिली है, कल शाम को मिली है उधर POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से। तो उसी को रिसीव किया अभी हमने और उसको कोडल फार्मेलिटीज़ के लिए हमने पुलिस के हैंड ओवर किया है। उसके बाद जो है सीधा वो उनके घर जो है वो भेज दी जाएगी। तो ये बहुत फॉर्चुनेट था हमारे लिए कि हमें डेड बॉडी मिली। हमें थैंकफुल है हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर UT के भी और पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के भी, जिन्होंने हमें ये बॉडी वापस दी। अभी हमें ये रिसीव हुई है आज की डेट में बॉडी। तो अभी हम यहाँ से बॉडी को ले जा रहे हैं वापस। तो अब हम अपने होम टाउन में इसको करेंगे पूरा जो भी होते हैं रीति रिवाज। तो हम थैंकफुल हैं मीडिया के भी, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा ज़मन यारीपुरा कुलगाम के बागात में आज सुबह एक नौजवान की लाश मिली। इसकी शनाख्त शाहिद अहमद मोची वल्द मोहम्मद अशरफ साकिना कई यारीपुरा के तौर की गई है। इस वाक़े से पूरे इलाके में खौफ दहशत का माहौल है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। लाश का पोस्टमार्टम अंजाम देने के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले किया गया। बोई काल 5 बजे गई कोतरम फालानी पत लगभग फोन कर रात फोन रिसीव गसन टोटल कहें। रात 12 बजे कोर्क फोन हमसाय लड़कस अकिस तम वो तो दोपन ये गो फलान एरिया कुन यह तथ एरिया मन पे गई रात कह गई सुबह पत तो सुबह पत वो पे जबन। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।